اے محمد، جب تک ہرن واپس نہیں آئے گی آپ اسی درخت کے ساتھ بندے رہیں گے۔ تم نے جان بوجھ کر پارٹی کنویں میں گرائی ہے۔ یہ کیا تم نے محمد کو تھپڑ مار دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے فاطمہ، میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، لو تم 2 کھجور کھاؤ۔ اے ابا جان، آپ کے گال پر یہ انگلیوں کے نشان کیوں ہیں؟ جنگل کے قریب وہ راستہ بالکل سنسان سا تھا اور اسی راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ تبھی آپ کی نظر پڑی کہ ایک یہودی نے رسی کس کر ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ ہرن کی آنکھیں ڈر اور بے بسی سے بھری ہوئی تھیں، اور جیسے ہی اس کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ تڑپ کر روتے ہوئے بول اٹھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلا تھا، میں بس تھوڑی دیر میں لوٹنے والا تھا، مگر اسی وقت یہ یہودی آیا، مجھے پکڑ کر باندھ دیا، صبح سے اب تک میں یوں ہی قید ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ننھے بے زبان، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، وہ مجھے نہ پا کر گھبرا گئے ہوں گے، شاید دودھ نہ ملنے سے ان کا گلا سوکھ گیا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے آگے التجا کرتا ہوں، میری مدد کر دیجئے، مجھے میرے بچوں سے ملنے دیجئے، مجھے انہیں دودھ پلانے کی اجازت دلا دیجئے۔ ہرن کی یہ درد بھری گزارش سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آنسو بے اختیار چھلک پڑے۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے روکھے لہجے میں کہا، میں نے اس کا شکار کیا ہے، جنگل کے جانوروں کا شکار جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ایک ماں ہے؟ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی بے چینی دیکھو، اس کی حالت دیکھو، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا پانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہودی بولا، میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ماں ہرن کو بس ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، یہ انہیں دودھ پلا کر ان سے مل کر خود بخود واپس تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ یہودی نے طنز کیا، بدھا ہوا جانور آج تک واپس آیا ہے؟ کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی کسی طرح بھی ہرن کو چھوڑنے پر تیار نہیں، تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو، اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے فرمایا، اگر یہ واپس نہ لوٹی تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ لینا۔ یہودی کی آنکھوں میں طنز اور لالچ چمکا، وہ بولا، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر، اگر یہ واپس نہ آئی تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ پھر جو ہوا وہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی سن رہ گئے۔ آخرکار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسی سے باندھ دیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن بیتابی سے جنگل کی طرف بھاگا جیسے اس کے دل میں آگ لگی ہو، اور ادھر یہودی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا، اب یہ ہرن کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، میں اس شخص کو ہمیشہ کے لیے قید میں رکھوں گا۔ اس سے بڑا سادہ انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی جان داؤں پر لگا دی۔ ہرن ہانفتا ہوا اپنے بچوں کے پاس پہنچا۔ بچوں نے اسے دیکھتے ہی گھبرا کر کہا، اماں، آپ صبح سے کہاں تھیں؟ ہم انتظار کرتے کرتے تھک گئے، بنا دودھ کے ہمارا گلا سوکھ گیا ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھیں؟ ماں ہرن کی آنکھوں میں شرم بھی تھی اور درد بھی۔ اس نے بچوں کو اپنے قریب کیا اور بولی، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانے کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا اور باندھ کر لے گیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، میں نے ان سے تمہاری حالت کہہ دی اور ان سے مدد کی گہار لگائی۔ پھر ماں ہرن کی آواز کانپ گئی، وہ بولی، بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدد کے لیے اپنے آپ کو اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے مل لوں، تمہیں دودھ پلا لوں۔ اب مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے اور میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گی۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پیارے بچوں،
वो संगदिल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए हैं, इसलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। मां हिरण की आवाज में ऐसा दर्द था कि बच्चे भी कांप गए। जैसे ही हिरण के बच्चों ने ये सुना कि उनकी अम्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वो फूट फूट कर रो पड़े। अम्मा, आप ये कैसे सोच सकती हैं? एक बच्चे ने सिसकते हुए कहा, हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पी लें जिन्हें वो यहूदी बांध कर बैठा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। दूसरा बच्चा आगे बढ़ा, आंसू पोंछते हुए बोला, आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ एक पल भी सहन नहीं कर सकते। और फिर जैसे कोई छोटा सा काफिला बन गया। मां हिरन आगे आगे और उसके बच्चे उसके पीछे। वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़े। रास्ते भर बच्चों की सिसकियां और मां की बेचैनी हवा में घुली हुई थी। उधर दूसरी तरफ जब हिरन के लौटने में थोड़ी देर हुई तो यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा सादा इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि वो हिरन वापस आएगा? कयामत तक वो हिरन लौटकर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही रहमत भरा लहजा रखा और बड़ी नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हिरन जरूर लौटकर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ए मोहम्मद, इन बातों को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वो हिरन कयामत तक वापस नहीं लौटेगा। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा और यहूदी मन ही मन नए नए ख्याल बुनता रहा। मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं इसके साथियों से खूब धन वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हिरन इंसान की ममता की वजह से लौट कर आया है? फिर थोड़ी देर और बीती और अचानक यहूदी की हंसी रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो देख रहा था कि सिर्फ हिरन ही नहीं लौट रही, उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन से पूछा, ऐ हिरन, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो ये था कि तू अकेली लौटेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से पूछा। मां हिरन ने सर झुकाकर जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे आखिरी बार मिल लूं, तुम्हें दूध पिला लूं, तो मेरे बच्चे रोते हुए बोले। मां हिरन की आवाज भर्रा गई। वो बोली, उन्होंने कहा, अम्मा, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पी लें? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और बस फिर वो मेरे साथ चल पड़े। फिर मां हिरन ने आगे कहा, या रसूल, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी में डाल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठाई, फिर यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो तुम्हारा हिरन लौट आया है और अकेला नहीं आया, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में एक जलाल भी था और रहमत भी। आपने फरमाया, और एक बात याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूं, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का भी नबी हूं। ये बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे तो पीछे से यहूदी की आवाज टूटती हुई आई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो हिरन जो आपकी ममता में वापस लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हिरन की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे आपको सौंपता हूं और आपकी खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और फिर वही हुआ। उस यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अब एक और वाकया सुनिए। अरब में एक गांव था जिसका नाम फादास था। उसी गांव में रोका नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था। वो अपनी ताकत और विशाल जिस्म की वजह से दूर दूर तक मशहूर था और उस जमाने में लोग उसे सबसे बलशाली इंसान माना करते थे। कुश्ती में कोई उसके सामने दम नहीं टिकाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हथियार डाल देते थे। अरब में उसकी बहादुरी और शक्ति के चर्चे गली गली थे।
और रोका का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के दिल कांप जाते थे। एक दिन रोका अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती की बातें कर रहा था। हंसी मजाक, शेखी और ताकत की डींगें सब चल रही थीं। तभी वहां एक अजनबी आया। उसने सबको मुखातिब करके कहा, क्या तुम लोगों को पता है मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान उतारा गया है। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और कहा जाता है कि अल्लाह उनके हाथों कई अजूबे भी दिखाता है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा, कोई हैरान होकर बोल पड़ा, हमें भी उनसे मिलना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। रोका भी कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसके चेहरे पर घमंड की एक परछाई आ गई। वो सोच में पड़ा और थोड़ी देर बाद बोला, अगर वो सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो सबको साबित हो जाएगा कि वो बस एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रोका अपने घर लौट आया। रोका का एक बेटा था, उसका नाम यजद था। वो भी अपने बाप की तरह बेहद ताकतवर था और उसने भी कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रोका ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। मैं सोच रहा हूं मक्का जाकर उससे मिलूं और उसके साथ कुश्ती करूं। ये सुनकर यजद की आंखों में भी जुनून उतर आया। वो बोला, बाबा मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो असल में कौन है। कुछ दिनों बाद रोका और यजद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर था, तपता रेगिस्तान था, कदमों के नीचे गर्म रेत थी, मगर उनके इरादे सख्त थे। आखिरकार जब वो मक्का पहुंचे तो रोका को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके सीने पर रखा हुआ कोई बोझ हल्का होने लगा हो। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर रही है। और फिर उसने मक्का के लोगों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर एक अलग ही रौनक थी, जैसे इस शहर की हवा में अल्लाह की रहमत घुली हुई हो। मक्का की फिजा देखकर रोका ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजद, मुझे लगता है ये जगह कुछ खास है। मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर रहा है। यजद ने भी सिर हिलाया और बोला, बाबा मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून, ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी वक्त उन्होंने कुछ लोगों को देखा। रोका और यजद उनके पास गए और पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने थोड़ा गौर से देखा और पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रोका ने सीना तानकर कहा, मेरा नाम रोका है, मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं एक मशहूर पहलवान हूं। ये सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। रोका और यजद मस्जिद की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे, रोका के कदम तो भारी थे, मगर दिल में सुकून बढ़ता जा रहा था। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग शख्स बेहद सुकून के साथ बैठे हैं। चेहरा नूरानी, नजरें नरम और होंठों पर ऐसी मुस्कान जो सीधे दिल में उतर जाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर आने वाले को बिना कहे ही खुशामदीद कह रहे हों। रोका ने गौर से देखा और उसके दिल ने जैसे गवाही दे दी, यही वो शख्स है जिनके बारे में उसने सुना था। वो आगे बढ़ा, अदब से सलाम किया और बोला, अहे मोहम्मद, क्या आप वही हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरम लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रोका ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूं। मेरा नाम रोका है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। अब तक मैंने किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें घमंड तोड़ने की ताकत थी, मगर लहजा फिर भी रहमत वाला। आपने फरमाया, पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रोका मन ही मन सोचने लगा, ये शख्स मुझसे आखिर क्या बात करना चाहता है। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, रोका, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया। उसी के आगे सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। ये सुनते ही रोका हैरान रह गया, उसकी भौहें चढ़ गईं और वो बोल पड़ा, ऐ मोहम्मद, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो यहां सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूं। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई खास कुव्वत है। इसी वजह से मैंने फैसला किया था
कि मैं आपके साथ कुश्ती करूंगा, लेकिन आप तो मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए कह रहे हैं। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी नरमी के साथ जवाब दिया, रोका, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। कुश्ती तो पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूं। रोका ये सुनकर हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में अदब कम और तंज ज्यादा था। वो बोला, ऐ मोहम्मद, मैं आपकी ये बातें सुनने नहीं आया। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और लोग ये भी कहते हैं कि आपको जादू आता है। अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी के घमंड को तोड़ती नहीं बल्कि उसे सही रास्ता दिखाती हो। आपने फरमाया, रोका, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। रोका की आंखों में फौरन दिलचस्पी आ गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या शर्त है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। यह सुनकर रोका अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मेरे मजबूत हाथ पैर और मेरी गजब की ताकत के सामने ये मामूली इंसान टिक भी नहीं पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूं और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका, और ये तो पहलवान भी नहीं है, फिर ये मेरी बराबरी कैसे करेगा? इसी सोच में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड भरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा, अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग ये मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। हर तरफ शोर, चर्चा और बेचैनी थी। हर कोई जानना चाहता था कि अब क्या होगा। लोग जानते थे कि रोका अपनी ताकत के लिए मशहूर है, मगर वो ये भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला कैसे करेंगे। और फिर तय समय आ गया। मुकाबला शुरू हुआ। लोगों की नजरें मैदान पर जम गईं और सांसें जैसे थम सी गईं। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोका मैदान में उतरे। चारों तरफ भीड़ जमा थी, हर आंख मैदान पर थी और हर दिल में एक ही सवाल, अब होगा क्या? जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रोका ने पूरे जोश के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़कर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर घमंड था और चाल में वो भरोसा कि आज भीड़ के सामने वही जीतेगा। लेकिन तभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रोका को पकड़ा, ऐसे जैसे कोई भारी बोझ नहीं, बस एक हल्की सी चीज हो, और फिर एक झटके में उसे उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रोका को यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से गिर गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसे अपनी ही ताकत पर शक होने लगा हो। उसने जल्दी जल्दी खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसी पल उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत जैसे कहीं खो गई हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बहुत इत्मीनान से बोले, ऐ रोका, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों ना अपनी हार मान लो और इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन घमंडी रोका ने दांत पीसकर कहा, नहीं, ये सिर्फ एक संयोग था, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गईं। भीड़ में सन्नाटा सा छा गया, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। रोका ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी। उसने पूरी कोशिश की कि किसी भी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे। उसने अपनी सांसें तेज कर लीं, मुट्ठियां कस लीं और एक झपट्टा मारा। लेकिन जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, नबी रहमत ने फिर से उसे पकड़ा, उसी आसानी से उठाकर जमीन पर पटक दिया। धूल उड़ी, भीड़ की आंखें खुली की खुली रह गईं। रोका को फिर से हार का सामना करना पड़ा। अब उसके चेहरे पर घमंड के साथ साथ हैरानी भी थी और अंदर कहीं टूटन भी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ रोका, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अब भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रोका का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, मैंने कभी किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं किसी ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं। और इसी जिद में उसने फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा,
मुझे एक आखिरी मौका दो। हमारे नबी तो रहमतुल आलमीन हैं। आपने फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ और अब मैदान में सन्नाटा और गहरा हो गया, जैसे हर कोई खुद भी रोका के साथ ये आखिरी दांव देख रहा हो। इस बार रोका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने जैसे अपना घमंड, अपनी जिद, अपनी पूरी जिंदगी की जीत, सब कुछ एक ही दांव पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, नबी ये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। धूल फिर से उड़ी और मैदान में एक पल को सन्नाटा छा गया। अब रोका उठने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी और आंखों में वो हैरानी थी जो घमंड को तोड़ देती है। उसे समझ में आ चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम ही सच्चा और बेहतरीन दीन है। फिर रोका ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उसके चेहरे से घमंड उतर चुका था, आवाज नरम हो चुकी थी। वो बोला, ऐ अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा दीन है। मैं आपको नबी के तौर पर मानता हूं और अल्लाह पर ईमान लाता हूं। जब रोका ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। दरअसल इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। ताकत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है, उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो, और ये भी अल्लाह ही की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह ना चाहता तो मेरे पास तुम्हें हराने की ताकत भी ना होती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर रोका की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू हार के नहीं थे, सुकून के थे। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाकया हमारे नबी रहमत की अजमत का एक जिंदा निशान था। मगर तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रोका का बेटा यजद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा और गुस्सा जमा हो गया था, जो उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यज़द ने गुस्से और जोश में भरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, ऐ मोहम्मद, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर ये दिखा दिया कि आप आम इंसान नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यज़द की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अब भी शक बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसलिए आपने मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज कबूल कर लिया। अब यज़द ने खुद को मुकाबले के लिए तैयार किया। वो अपने पिता की तरह ही ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके सीने में एक आग सी जल रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने खानदान की इज्जत वापस ले आएगा। फिर जब कुश्ती शुरू हुई तो यज़द ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, मगर हमारे नबी रहमत ने हर एक वार को इतनी आसानी से रोक लिया जैसे सामने कोई बच्चा जिद कर रहा हो। यज़द हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। उसने फिर जोर लगाया, फिर झपट्टा मारा, फिर अपनी सारी कहुव्वत समेट ली, मगर हर बार उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वो अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यज़द ने पूरी ताकत से हमला किया। उसने सोचा, अब की बार मैं गिरा ही दूंगा, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यज़द का जिस्म इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। उसकी सांस अटक गई, आंखों के आगे जैसे तारे घूम गए। यज़द ने फिर से उठने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी। वो हाँफ रहा था और उसके अंदर का घमंड धीरे धीरे पिघल रहा था। जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो डराती नहीं, संभाल लेती है। फिर हमारे नबी रहमत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐ यज़द, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो, असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। अब बताओ, क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बचा है? ये सुनते ही यज़द की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद को झुका दिया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है।
मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रोका और यजद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बेअदबी वाला सवाल लेकर आया। उसके लहजे में सख्ती थी और आंखों में तंज। वो बोला, ए मोहम्मद, क्या आपने ये दावा किया है कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हैं? और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है? कोई पैगाम उतरता है? फिर उसने आगे कहा, अगर आपकी बात सच है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान के लिए नामुमकिन हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सुकून से फरमाया, तुम क्या देखना चाहते हो? उस युवक ने दूर खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो बिना छुए अपने हुक्म से इस पेड़ को यहां बुला लो। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने फरमाया, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। युवक बड़ी उम्मीद और तजस्सुस के साथ पेड़ के पास गया। उसने कहा, ऐ पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही ये अल्फाज पूरे हुए, पेड़ कांप उठा। लोगों ने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ें जमीन से निकाल लीं और धीरे धीरे हैरत अंगेज तौर पर कूदता हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया। युवक ये देखकर चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं। वो बोल पड़ा, ये तो जरूर कोई जादू है। फिर उसने जिद में कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पेड़ को वापस उसी जगह भेज दो जहां से ये आया था। नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, अपनी जगह पर लौट जाओ। और सबने देखा, पेड़ फौरन वापस अपनी जगह चला गया और पहले जैसा सीधा खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर लोगों के दिलों में तूफान चल चुका था। उस नौजवान के अंदर सब कुछ बदल चुका था। ये देखकर वो युवक जोर से बोल उठा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके बाद उस युवक ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे खानदान को भी मुसलमान बना लिया। ये वाकया यहीं खत्म नहीं होता। अब एक और वाकया सुनिए। एक बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक एक तख्ती पर नजर पड़ी। उस पर लिखा था, यहूदी के खजूर के बाग में पानी दो और बदले में खजूर पाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में सोचा, मुझे भी खाना चाहिए, क्यों ना मैं यहां काम कर लूं। फिर आप सीधे उस यहूदी के घर गए और फरमाया, ऐ यहूदी, मैं तुम्हारे यहां काम करना चाहता हूं, मुझे खजूर चाहिए, क्या तुम मुझे काम दोगे? नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सलीके से पूछा। यहूदी हंस पड़ा जैसे किसी ने मजाक कर दिया हो। बोला, भाई, तुम मेरे यहां कौन सा काम करोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, सुना है तुम्हारे खजूर के बाग में पानी देने पर खजूर मिलते हैं, मैं वही काम करना चाहता हूं। यहूदी ने चालाकी से मुस्कुराकर दूर इशारा किया, अरे वो काम आसान नहीं है, देखो दूर वो कुआं है, उसका पानी बहुत नीचे है, वहां से पानी निकालना बड़ा मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे भरोसे से जवाब दिया, हाँ मैं कर लूंगा, मुझे खाना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। यहूदी मन ही मन कुटिल हंसी हंसा, ये आदमी पानी निकाल ही नहीं पाएगा, क्यों ना इसे धोखा दूं। वो फौरन घर के अंदर गया और एक पुरानी सड़ी गली रस्सी वाली बाल्टी उठा लाया। रस्सी ऐसी लग रही थी जैसे बस छूते ही टूट जाएगी। उसने वो बाल्टी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया और बाल्टी कुएं में डाल दी। सबकी नजरें उसी रस्सी पर थीं, लेकिन जैसे ही आपने रस्सी खींची, अचानक रस्सी टूट गई और बाल्टी धप से कुएं के अंदर गिर पड़ी। दूर से यहूदी हंसता हुआ दौड़कर आया और बदतमीजी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। उस पल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, ना गुस्सा ना बद्दुआ, बस वही रहमत, वही सब्र। आपने अल्लाह से भी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसी यहूदी से बड़े सुकून से पूछ लिया, ऐ यहूदी, जिस हाथ से तुमने मुझे मारा, क्या उस हाथ में तुम्हें दर्द हुआ? यहूदी हैरान होकर बोला, नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुमने मेरी बाल्टी कुएं में गिरा दी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, ठीक है, मैं खुद तुम्हारी बाल्टी कुएं से निकालूंगा और पानी भरकर तुम्हारे बाग में दूंगा, बस तुम मुझे मेरा हक दे देना। यहूदी जोर से हंसा, जैसे फिर से मजाक मिल गया हो। बोला, तुम कुएं से बाल्टी निकालोगे?
इसमें तो कोई सीढ़ी भी नहीं है, तुम कैसे कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मुझे बस कुएं के पास जाने दो। और फिर वही हुआ जो अल्लाह की मदद के बिना मुमकिन नहीं। उसी वक्त अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, मेरे दोस्त कुएं के पास आ रहे हैं, जाओ कुएं का पानी ऊपर तक भर दो और बाल्टी मेरे प्यारे दोस्त के हाथ में पहुंचा दो ताकि मेरा हबीब खाली हाथ ना लौटे। और फिर जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में हाथ डाला, सुभान अल्लाह, एक लम्हे में बाल्टी आपके मुबारक हाथ में आ गई और पानी भी कुएं के मुंह तक भर गया। ये मंजर देखकर यहूदी सन्न रह गया। उसका दिल धक धक करने लगा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। यहूदी का दिल और ज्यादा कांप उठा। वो मन ही मन बुदबुदाया, मेरे कुएं में तो तला भी नहीं, सीढ़ी भी नहीं, फिर ये आदमी बाल्टी कैसे निकाल लाया? नहीं नहीं, ये साधारण इंसान नहीं हो सकता। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी शिकवे के उसी खजूर के बाग में पानी देना शुरू किया। मिट्टी सूखी थी मगर आपके हाथों में हिम्मत और सब्र की ठंडक थी। जब पानी देना खत्म हुआ तो यहूदी ने खामोशी से आपको खजूर दे दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूर लेकर अपने घर की तरफ लौटे और रास्ते भर अपने प्यारे नवासे हसन और हुसैन को ढूंढते रहे, मगर बहुत तलाश के बाद भी दोनों नजर नहीं आए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन हो उठा। आप फौरन रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े और कुछ चरवाहों से पूछा, ऐ चरवाहो, क्या तुमने मेरे हसन और हुसैन को देखा है? क्या तुमने दो छोटे छोटे बच्चों को इस तरफ जाते देखा है? चरवाहों ने कहा, हाँ, हमने दो बच्चों को देखा है, मगर आपको एक अजीब बात सुनानी होगी। वो दोनों बच्चे इसी रास्ते से रेगिस्तान के पहाड़ की तरफ गए और वहां जाकर सो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो बच्चे यहां से गुजरे, हमारे ऊंट और बकरियां उन्हें देखकर रोने लगीं, और जब तक वो दोनों बच्चे पहाड़ के अंदर रहे, हमारे ऊंटों ने घास तक मुंह में नहीं डाली। हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों। ये सुनते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने फरमाया, ऐ चरवाहो, तुम उन बच्चों को देखकर सह गए, दुनिया भी उन्हें देखकर सह गई, मगर जानवर और परिंदे भी उनकी भूख सह नहीं पाए। जब तक उनके पेट में खाना नहीं जाएगा, ये जानवर भी मुंह में निवाला नहीं डालेंगे। इतना कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा हसन और हुसैन रेत को तकिया बनाकर सोए हुए हैं। धूप उनके चेहरों पर पड़ रही है और मासूमियत जैसे रेगिस्तान में बिखरी हुई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा। दोनों ने जैसे ही आंखें खोलीं और देखा कि उनके प्यारे नाना जान आ गए हैं, तो उछलकर दौड़े और गले लग गए। उनकी सिसकियां रुक ही नहीं रही थीं। ओ नाना जान, हमारे घर में खाना नहीं है। हसन और हुसैन रोते हुए बोले, चूल्हे में आग नहीं जलती और आप भी हमारे पास नहीं होते, मगर जब आप हमें मिलने आते हैं, आपको देखते ही दिल को जैसे तसल्ली हो जाती है, भूख भी कुछ देर के लिए मिट जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को सीने से लगाया, काफी देर तक उन्हें अपने सीने से चिपकाए रखा और फिर बहुत प्यार से कहा, चलो अब देर मत करो, घर चलते हैं। मगर हसन और हुसैन जिद करने लगे, नाना जान, हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बेटी हमारे लिए खाना नहीं बनाती। जब भी हम खाना मांगते हैं वो हमें डांट देती है। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया, मगर आपने लहजा नहीं बदला। आपने बहुत समझाया, बहुत प्यार से मनाया और आखिरकार वो दोनों मान गए और नबी के साथ घर लौट आए। घर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, ऐ फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, लो तुम 2 खजूर खाओ, हसन को दो और हुसैन को दो। फातिमा ने खजूर हाथ में लिए, मगर जैसे ही उनकी नजर अपने अब्बा के चेहरे पर पड़ी, उनका दिल जैसे कांप गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, ऐ अब्बा जान, आपके गाल पर ये उंगलियों के निशान क्यों हैं? ओ मेरे अब्बा जान, आपको किसने मारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, ऐ फातिमा, तुम खाना खाओ, ये सवाल अभी मत करो। उधर यहूदी अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे देखते ही घूर कर पूछा, क्या तुम्हें पता भी है तुमने किस पर हाथ उठाया? यहूदी लापरवाही से बोला, नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने मोहम्मद को मारा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? ये सुनते ही उसकी बीवी गुस्से और डर से कांप उठी। वो चीखती हुई बोली, ओ नादान, जिसे तुमने मारा है, जानते हो वो कौन है?
वो आखिरी जमाने के नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने उस नबी पर हाथ उठाया है। मैं इस गुनाह को मान ही नहीं सकती। तुम्हारा ये हाथ कभी सलामत नहीं रहेगा। तुरंत जाओ, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा हाथ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर यहूदी सन्न रह गया। उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई, आंखें डर से फैल गईं। वो कांपती आवाज में बोला, अगर वो सचमुच आखिरी जमाने के नबी हैं और मैंने उन पर हाथ उठाया है, तो मैं ये हाथ अब रखूंगा ही नहीं। ये हाथ अब मेरे किसी काम का नहीं। इस गुनाह का फैसला मैं किसी हाकिम के पास, किसी बादशाह के पास नहीं ले जाऊंगा। अपना फैसला मैं खुद ही करूंगा। उसने अपनी बीवी से कहा, अभी मेरे लिए एक धारदार छुरी ले आओ, मैं अपना ये हाथ खुद ही काट दूंगा। और फिर वो घड़ी आ गई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने सचमुच अपना हाथ काट डाला। खून बह रहा था, दर्द भी था, मगर उससे ज्यादा उसके दिल में पछतावा था। वो कटा हुआ हाथ उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो लोगों ने कहा, नबी घर पर नहीं है, वो अपनी बेटी फातिमा के घर गए हैं। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अब्बा जान से कह रही थीं, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने तमाचा मारा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या आप अल्लाह के दरबार में दुआ नहीं कर सकते कि जिसने आप पर हाथ उठाया है अल्लाह उसका नाश कर दे? लेकिन मैं फातिमा आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करूंगी कि वो जालिम बर्बाद हो जाए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से कहा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं गजब का नबी नहीं हूं, मैं रहमत का नबी हूं, मैं माफ करने वाला नबी हूं, बदला लेने वाला नहीं। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं और ना पहचानने की वजह से ये गलती हो गई। इतने में घर के बाहर से आवाज आई, क्या मोहम्मद इस घर में मौजूद हैं? फातिमा ने कहा, अब्बा कोई आपको बाहर से पुकार रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो देखा वही यहूदी खड़ा है। उसका हाथ कटा हुआ है, खून बह रहा है और उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं। वो रोते हुए बोला, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नबी ने पूछा, ऐ यहूदी, तुम्हें क्या हुआ? यहूदी कांपते हुए बोला, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने गलती से आप पर हाथ उठाया। इसका फैसला मैंने किसी इंसान को नहीं दिया, मैंने खुद ही कर लिया। मैंने अपना हाथ काट दिया है, क्योंकि जिस नबी के जिस्म पर मक्खी तक नहीं बैठती उस नबी पर मैंने हाथ उठाया था, इसीलिए मैंने अपना हाथ खुद काट दिया। यहूदी की आवाज टूट रही थी, आंखों में पछतावे की आग थी और चेहरा शर्म से झुका हुआ था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और बड़े नर्म लहजे में फरमाया, ऐ यहूदी, तुम्हें अपना हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। ये सुनकर यहूदी की आंखें भर आईं। वो कांपते हुए बोला, ऐ नबी, आप जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। इतने बड़े गुनाह के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। उस वक्त हर किसी ने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस कटे हुए हाथ पर गई और आपके दिल में रहमत की एक और लहर उठी। आप चाहते थे कि इसका हाथ फिर से सही हो जाए। उसी पल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ जिब्राइल, देखो मेरा प्यारा दोस्त क्या करना चाहता है, जाओ और उससे कह दो अगर नबी ने इसे माफ कर दिया है तो अल्लाह भी इसे माफ कर देगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के सामने हाजिर हुए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलाम आप पर हो, क्या आपने इस यहूदी को माफ कर दिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं गजब का नबी नहीं, रहमत का नबी हूं। मैं बदला लेने वाला नहीं, मैं माफ कर देने वाला नबी हूं। हाँ, मैंने इसे माफ कर दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरा अल्लाह भी इसे माफ कर दे और इसका हाथ फिर से सही कर दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपने मुबारक लार को उसके कटे हुए हाथ पर लगाया और सुभान अल्लाह, हाथ पहले जैसा सही हो गया, निशान तक न रहा। ये देखकर यहूदी फूट फूट कर रो पड़ा। वो बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हाथ को आपने अपनी लार से जोड़कर पहले जैसा कर दिया, उसी हाथ को पकड़कर मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलिमा पढ़ाया और वो यहूदी मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत मोजिज़ात से भरी हुई है। अल्लाह हमें सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम को अपनी जिंदगी में लागू करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वाक़यात अच्छे लगे हों और आपके दिल में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बढ़ गई हो
तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ऐसी रहमत वाली बातें दिलों को जिंदा कर देती हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ सुनकर नहीं रुक जाना, इन वाकयात से सबक लेकर अपनी जिंदगी में नरमी, सब्र और माफी को जगह देनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने अजीजों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का निशान भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही ईमान बढ़ाने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और नीचे कमेंट में लिखिए सल्लू अलन नबी, ताकि हम सब मिलकर नबी रहमत पर दुरूद भेजें। अल्लाह हमें सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को साफ करे और हमें सच्चाई पर कायम रखे। आमीन।